Fine. So in the last class, I discussed regarding the concept of list. So today I'll try to complete the concept of this list. So I discussed some methods of list like append method, then your insert method, pop method, remove method, how to remove all occurrences of an element present in the list like this. Fine. So today we will cover some more methods on the list. Suppose I'm having a list L1, elements are like 10, 20, 30, and one more list that is L2, and in L2 elements are like 50, 60, 70. Now what I want to combine these two lists into a new list. It means I want to create another list that is L3, and in this L3, what I want elements of both L1 as well as L2. So how to combine two lists into a new list? So for this purpose, what you can use plus operator, that is L1 plus L2. So you can see another behavior of this plus in Python programming language. So far we have seen that is for arithmetic addition. And second behavior of this plus operator is in a string, that is for string concatenation. And this plus operator also performs concatenation with list. With str, it performs concatenation. With list, it also performs concatenation of. You can use any term, either merge or concat. Fine. Now, if I use this plus operator with these two lists L1 plus L2, then this plus operator returns a new list. You can have this list into a variable L2. Now, if you try to print all the list, that is L1, then L2, then your L3. Now you will see L1 is having 10, 20, 30, these three elements, and L2 is having 50, 60, 70, these three elements, and L3 will be having 10, 20, 30, 50, 60, 70 in the same order. This is L1, this is L2, and this is your L2. Fine. Now, there is another requirement, and that requirement is what? I want to extend I want to extend existing list. I do not want to create a new list. So in this expression, what we did, we created a new list that is L3, but this time requirement is what? We need not to create new list, we just need to extend existing list. So what I will write here, I will write L1 dot extend, L1 dot extend L2. So this extend method does not create a new list or does not return a new list. Rather, what it will do, it will extend this L1 list with the element of this L2. So if I try to print L1, you will see elements of L1 10, 20, 30, then L1 after this extend method. And in the L2, what you can see, you will see same element, that is 50, 60, 70 only. So this is your L1, this is your L2. So extend, as the name suggests, extension.
मतलब किसी भी चीज को ही बढ़ा देना. So it is extending L1. Now in place of this syntax, if I write L2 dot extend x1, so this time L2 list will be extended. L1 you will see same, and this is the extension. This is the extension of L2 with L1. So this is the element, fine, of L1, sorry, L2, and these are the elements of this L1. Fine. So this is what, this is the concept of your extend method. So it means you can create a new list with the help of two existing lists. You can extend an existing list using the concept of existence. Fine. Now, suppose what I want, I'm having a list L equal to, and in this list, suppose there are some elements like 10, 20, minus 10, again 10, 0, then 4, 7, 8, like this. Now what you want, if you will print this list, you will see the output as it is. In the same order, you will see the elements of this list. It is 10, 20, minus 10, 10, 0, 4, 7, 8. Now, what I want to sort elements of this list in ascending order. Ascending order का मतलब होता है जो छोटी वैल्यू होगी वो सबसे पहले आनी चाहिए, फिर उससे बड़ी वैल्यू आनी चाहिए. दो वैल्यू अगर बराबर हैं तो वो एक साथ आनी चाहिए. So I need to sort elements of this list in this manner. So you need not to perform any logic. You need not to write any logic. In Python, there is a ready-made method for list, and the name of that method is sort. You just need to write L dot sort. So in the sort method, by default, sort method consider ascending order, right? So after sorting, if you ये जो लिस्ट है वो असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट हो चुकी है. असेंडिंग मींस छोटा एलिमेंट सबसे पहले आएगा. -10, 0, 4, 7, 8, 10, 10, 20. Now if you want to sort this list in descending order, so what you need to write, you will write s dot sort. As argument you will write here reverse equal to true. So this time this sort method sort the elements of this list in descending order. Descending order का मतलब होता है सबसे पहले बड़ी वैल्यू आएगी, फिर उससे छोटी वैल्यू आएगी, एंड सो ऑन सो. प्रिंट ऑफ आएगा 20, 10, 10, 8, 7, 4, 0. फाइन. नाउ क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं लिस्ट के अंदर एलिमेंट को ऐड करूंगा डायनेमिकली? डायनेमिकली मींस आई विल आस्क द वैल्यूज ऑफ लिस्ट फ्रॉम द यूजर एट रन टाइम. सो इज इट पॉसिबल और नॉट? आंसर इज यस. अभी हम क्या कर रहे हैं, अभी हम पहले से ही एडवांस में स्टोर करके चल रहे हैं. मैं रन टाइम पर इस काम को करना था. सो फर्स्ट you will create empty list. So in Python, whenever you need to create empty list, generally we use this syntax. It means you are having empty list. Now in this empty list, what you want to add, you want to add element, and you will read this element from the user at runtime. Suppose you want to read integer element from the user. So what you will write, you will write here int input, then a prompt message, enter, then here you will write enter value, and
receive this value into a variable, let us suppose x. So x is a variable which is representing the runtime input given by user. Now, in the next step, what you will do, you will add this x to this L. So best option is append, L dot append. And I need to append this x to this list L. So if I print this L, you will see a list with single element only. And this single element ये जो होगा वो कौन सा होगा, वही जो हमने यूजर से भी रन टाइम पर लिया है. Enter value. So if I write here enter value like 5, तो लिस्ट के अंदर सिर्फ आपको 5 नजर आएगा. सर ऐसा नहीं हो सकता कि हम यूजर से एक और वैल्यू पूछें और वो भी लिस्ट में ऐड हो जाएगी? तो इस 2 लाइन के कोड को कॉपी पेस्ट कर दीजिए. देखो, एंटर वैल्यू 6, एंटर वैल्यू 9. तो अगर मैं यूजर से 5 इनपुट लेकर लिस्ट में ऐड करना चाहता हूं तो ये कोड कॉपी पेस्ट 5 टाइम्स कर दीजिए. एंटर वैल्यू 2 -1 5 3. योगेश बताइए, मुझे इस प्रोग्राम को कंप्रेस करना है, कैसे कंप्रेस कर सकते हैं? कंप्रेस का मतलब है मैं कम लाइंस यूज करना चाहता हूं सेम प्रोग्राम लिखने के लिए, कैसे करेंगे? इज देयर एनी वे टू रिड्यूस द लेंथ ऑफ दिस प्रोग्राम? यस योगेश. Not getting your voice. रश्मि, रश्मि सर वाइल लूप का यूज करके 5 टाइम. ठीक है, यानी कि कॉन्सेप्ट इज लूप. आपको लूप यूज करना चाहिए क्योंकि इसी तरह की सिचुएशन से डील करने के लिए ही हमने लूप को पढ़ा था और आज हमें उसकी जरूरत पड़ रही है, तो हम लूप का यूज करेंगे. क्योंकि अभी देखो 5 यूजर से इनपुट एंटर कराना है, तब तक तो चलो आप लिख भी देंगे. अगर मैं आपसे कहूँ मुझे 10,000 वैल्यूज इनपुट करानी है, तो 10,000 टाइम्स इन स्टेटमेंट को लिखेंगे तो 20,000 लाइन तो इसी बात की होगी. तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है. इवन आप कॉपी पेस्ट भी करेंगे तो कॉपी पेस्ट में भी समय लगेगा, कंट्रोल सी कंट्रोल भी करने में बार बार. ठीक है, तो बेटर क्या है, इस कोड को हम लूप के थ्रू इंप्लीमेंट करेंगे. कैसे देखते हैं? सो व्हाइल लूप यूज कर सकते हैं या आप यूज कर सकते हैं फॉर लूप. तो मैं सजेस्ट करता हूं सिंप्लिसिटी के लिए, इफ यू नो नंबर ऑफ इटरेशन then go with for loop. If you do not know number of iteration, then go with while loop. दोबारा समझते हैं. अगर आपको ये पता है कि आप कितने इटरेशन करने की बात कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करता हूँ फॉर लूप के लिए. और आप ये नहीं जानते कि कितने इटरेशन करने हैं, तो आप while लूप का यूज करते हैं. ठीक है, तो मैं ये नहीं कह रहा, जो मैंने बताया ये एक स्टैंडर्ड होता है, ये एक एक्सपीरियंस है जो मैंने, इससे की सिंप्लिसिटी आ जाती है. अगर आप कई प्रोग्रामर्स के कोड देखेंगे तो आप सेम पैटर्न पाएंगे कि हर प्रोग्रामर फॉर लूप यूज कर रहा था क्योंकि उसे पता था कितनी बार हमारा इटरेशन होना है, और हर प्रोग्रामर व्हाइल लूप यूज कर रहा था क्योंकि उसे पता ही नहीं था लूप कितनी बार चलना है. इससे चीजें थोड़ी सिंपल रहती हैं. ठीक है, तो मैं भी यही करने वाला हूँ. मुझे पता है 5 बार लूप चलाना है, तो मैंने यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल कर दिया. फॉर आई इन रेंज 5. और ये सब जरूरत नहीं है, सिर्फ एक बार मुझे इस कोड को लिखना, यहाँ पर फॉर लूप पे.
ये कोड 5 बार आपसे वैल्यू पूछेगा, एंटर वैल्यू, और ये आपका हो जाएगा। अब सोचो आप बोलेंगे नहीं सर मैं 5000 एलिमेंट इनपुट कराऊंगा, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 0 लगाने हैं, कोड की लेंथ नहीं बढ़ रही है। अब ये 5000 बार चलेगा आपका कोड, ठीक है, पूरा कोड नहीं, सिर्फ वो स्टेटमेंट जो लूप के अंदर लिखे हैं वो 5000 टाइम्स एग्जीक्यूट होंगे, ठीक है। तो अभी हमें उसको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब इतना सारा कोड होता है तो बेसिकली हम यूजर से इनपुट नहीं लेते, यूजर भी थक जाएगा यार, कब तक इनपुट देगा वो। तो हम एक डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं या एक फाइल का इस्तेमाल करते हैं, वहां से हम उसको पिक करते हैं, ठीक है। ऐसे यूजर से 2 4 5 इनपुट लेना है, ठीक है। सोचो आज से अगर मैं आपको बताऊं, जब जीमेल सबसे पहले आया था तो जीमेल हमसे बहुत सारी चीजें पूछता था, ये बताओ वो बताओ, ये इनपुट दो वो इनपुट दो। आज जीमेल हमसे ज्यादा चीजें नहीं पूछता है, गिनी चुनी 4 5 चीजें पूछते हैं। आज किसी भी वेबसाइट पर अकाउंट बनाने जाओगे 4 बातें पूछेगा, नाम, पासवर्ड, अपनी ईमेल आईडी बता दो, मोबाइल नंबर बता दो, बस डेट से, क्योंकि ज्यादा इनपुट देना यूजर को पसंद ही नहीं है, ठीक है। चलो तो फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं वापस लिस्ट पर अपने। तो इस तरह से हम रन टाइम पर यूजर से इनपुट लेके लिस्ट बना सकते हैं। अब सपोज करिए आपसे मैं ये कहता हूं कि मुझे यूजर से रन टाइम पर ये जो मार्क्स हैं इनपुट कराने हैं, यानी कि वैल्यू की जगह मैं यहाँ पर मार्क्स कर सकता हूँ, एंटर मार्क्स, ठीक है। तो जो आपके मार्क्स आए हैं वो 5 सब्जेक्ट के मार्क्स आपको इनपुट करने होंगे, ठीक है। पहली बार पहले सब्जेक्ट के मार्क्स, दूसरी बार दूसरे सब्जेक्ट के मार्क्स, तीसरी बार तीसरे सब्जेक्ट के मार्क्स। अब आपके प्रोग्राम को ये बताना है कि किस सब्जेक्ट के मार्क्स हाईएस्ट हैं, या अभी सब्जेक्ट हटा देते हैं, मार्क्स की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, मतलब सिर्फ हाईएस्ट वैल्यू बतानी है, ये नहीं बताना है तो फिजिक्स में ज्यादा थे या केमिस्ट्री में ज्यादा थे, क्योंकि अभी वो हम नहीं कर पाएंगे, उसके लिए डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। अभी सिर्फ हमें ये बताना है यूजर से 5 सब्जेक्ट के मार्क्स की वैल्यू इनपुट करनी है और हाईएस्ट मार्क्स क्या हैं वो बताने हैं, ठीक है। तो एंटर मार्क्स, और यहाँ पर मैंने 5 मार्क्स को अपेंड कर दिया। अब मैं यहाँ पर पूरी लिस्ट प्रिंट नहीं कर रहा हूँ, पूरी लिस्ट प्रिंट करूंगा तो उसमें 5 सब्जेक्ट के मार्क्स होंगे, मुझे सिर्फ हाईएस्ट मार्क्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम मैक्स फंक्शन का यूज कर सकते हैं, that we used with string. So max, min, len, these 3 functions can be used with string or with any data structure. So if I write here max of L, it will give you the maximum marks. So let me write here maximum. Similarly, if you need to obtain minimum marks, you can call min function. That is minimum marks. If I write here enter marks 20, 13, 21, 17, 16, मैक्सिमम मार्क्स हैं 21 और मिनिमम मार्क्स हैं आपके 13, ठीक है। अब मुझे इसी प्रोग्राम में क्या बताना है, 2 मार्क्स बताने हैं, इससे कोई एक मार्क्स मैक्सिमम आएगा, मुझे टॉप 2 मार्क्स चाहिए या टॉप 3 चाहिए। तो कोई बताना चाहेगा क्या करें ऐसा कोड के अंदर कि हम टॉप 2 मार्क्स या टॉप 3 मार्क्स निकाल पाए? सुप्रिया बताना चाहेंगे इसमें? अगर मैक्सिमम एल को रिमूव कर दिया जाए सर तब? क्या कह रहे हैं रवि? अगर मैक्सिमम एल को एक वैल्यू में लेके उसको रिमूव कर दिया जाए तो इसके बाद फिर से मैक्सिमम एल को
प्रिंट करा दिया जाए तो सेकंड हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, रवि का ट्रिक तो अच्छा है। ये कह रहे हैं कि मैक्सिमम जो मार्क्स आए हैं उनको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं पहले और उसको फिर रिमूव कर देते हैं। तो अब जो नेक्स्ट मैक्सिमम मार्क्स होंगे फिर से मैक्स फंक्शन से निकाल लेते हैं। इस तरह से 2 मैक्सिमम मार्क्स मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन नुकसान इस अप्रोच का ये होगा कि आपके लिस्ट में जो मैक्सिमम मार्क्स सबसे पहले जो थे वो डिलीट हो चुके होंगे, तो फिर आप उसको अपेंड करेंगे। मतलब ठीक है, पॉसिबल वे टू गेट द आउटपुट बट नॉट फीजिबल। इसको सॉर्ट कर लेंगे और फिर उसके बाद स्टार्टिंग के रेंज लगा देंगे। 2 जो लेंगे हम, रेंज 0 to 1 वो निकाल लेंगे सॉर्ट सो करके। ये सॉल्यूशन बेटर होगा। सो फर्स्ट व्हाट आई विल डू, आई विल सॉर्ट द लिस्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर। फाइन, so I will write here L dot sort reverse equal to true. So now I am having maximum element at 0th position and next maximum element at first position, and better to use slicing. अगर मैं आपसे कहता हूं कि मेरे पास एक लिस्ट है, इस लिस्ट में कुछ एलिमेंट्स हैं और मुझे सिर्फ शुरू के 2 एलिमेंट एक साथ चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए। मुझे एक लिस्ट से, ये लिस्ट है, इस लिस्ट से एक सब लिस्ट बनानी है और उस सब लिस्ट के अंदर आई वॉन्ट ओनली फर्स्ट 2 एलिमेंट्स। सो व्हाट विल बी द सिंटैक्स टू ऑब्टेन दिस सब लिस्ट? कौन बताएगा भाई इसको? एक लिस्ट से सब लिस्ट बनानी है और उस सब लिस्ट में शुरू के 2 एलिमेंट होंगे। शिवांश बताना चाहेंगे? सर स्लाइस करेंगे 0 और फर्स्ट एलिमेंट को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? प्रिंट L ऑफ 0 से शुरू करेंगे और 2 तक जाएंगे, है ना? क्योंकि 0 पोजीशन का चाहिए, फर्स्ट पोजीशन का चाहिए, 2 एक्सक्लूसिव होगा, इसलिए हमें 2 लिखना होगा क्योंकि ये तो आएगा नहीं हमारा। 0 पोजीशन का एलिमेंट आएगा, फर्स्ट पोजीशन का एलिमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका काम करता है। 13 मैक्सिमम मार्क्स है, मिनिमम मार्क्स है 10 और 13 12, दीज आर द 2 हाईएस्ट मार्क्स। इसी तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं जिनकी सैलरीज मुझे गिवन है। अब मुझे पता करना है हाईएस्ट सैलरी क्या है। किसकी है हाईएस्ट सैलरी, उसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं, है ना? वो अलग एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू हम ये पता करते हैं कि हाईएस्ट सैलरी क्या है और वो किसकी है, उसकी डिटेल निकाल कर दो, वो अलग कॉन्सेप्ट हो गया। यहाँ पर अभी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए। इसी तरह से हम ये पता कर सकते हैं टॉप 5 जो सैलरीज हैं जो हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दे रहे हैं एम्प्लॉयज के लिए, वो क्या है, टॉप 5 सैलरीज। ठीक है, तो सेम कोड इस काम के लिए यूज किया जा सकता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पर एक यूज के you can call min function, max function and sort method with the list, but एक पॉइंट है जो आपको ब्रेन में रखना होगा। ये तीनों जो हमारे ऑपरेशंस हुए हैं ये तभी हो सकते हैं जब लिस्ट के अंदर सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हैं। अगर लिस्ट में हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स हो गए तो ये तीनों ऑपरेशन फेल हो जाते हैं। लेट मी राइट द कोड। So if I write here L equal to 10, then 5, then high, then y, and then Boolean value that is true. Now, what you want? You want to find maximum element of the list. So this time it is not possible. Max function generates error.
फाइन। तो किसी भी लिस्ट में मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन, सॉर्ट मेथड ये तभी चलते हैं जब एलिमेंट हमारे सेम टाइप के हैं। क्यों? क्योंकि देखो इंटरनली जब मैक्स फंक्शन काम करता होगा तो ये कंपैरिजन करता होगा, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। अब कंपैरिजन बराबर का हो सकता है, ठीक है। 10 का कंपैरिजन 5 से हो सकता है, दोनों न्यूमेरिक में। 10 का कंपैरिजन हाई से नहीं हो सकता, एक स्ट्रिंग है और एक न्यूमेरिक है, मना कर देगा। कंपैरिजन हो रहा है ग्रेटर देन, नॉट सपोर्टेड बिटवीन स्ट्रिंग एंड इंट, यानी कि इंटरनली मैक्स फंक्शन, मिन फंक्शन और सॉर्ट ये तीनों के तीनों इफ एल्स लगाकर कंपैरिजन करते हैं। जो काम मुझे ना करना पड़े वो काम इन्होंने पहले ही करा हुआ है। ना मिन चलेगा ना मैक्स चलेगा, इसी तरह से आपका सॉर्ट भी नहीं चलेगा। तो अगर आप यहाँ लिखना चाहते हैं एल डॉट सॉर्ट तो वो भी नहीं चलेगा। सॉर्ट मेथड रिटर्न्स टाइप एरर। सो इस मामले में जावा लैंग्वेज थोड़ी आगे निकल गई। जावा इज अ टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा में अगर आप लिस्ट बनाते हैं तो वो यहाँ तक बात पहुँचने ही नहीं देगा। जिस समय बना रहे थे उस समय ही वो मना कर देगा कि भाई ये नहीं हो सकता हमारे यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि आप जरूर जब आप डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं तो सर्चिंग सॉर्टिंग मान के चलते हैं कि आप करोगे ही करोगे इसे, कि बहुत ज़्यादा बार जब डेटा स्ट्रक्चर में डेटा पड़ा होता है तो सॉर्टिंग तो हमें करनी ही होती है। और अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर हेट्रोजीनियस एलिमेंट्स को स्टोर करता है, सॉर्टिंग फेल हो जाएगी, है ना। इसीलिए जावा ने कैप लगा रखा है कि भाई आप कर ही नहीं पाएंगे ऐसा, आपको सेम कैप सी ने भी लगा रखा है ना। सी के अंदर लिस्ट जब बनाएंगे आप या एरे बनाएंगे तो वहां पर आपको ये सब चीजें माननी पड़ेंगी, ठीक है। चलो, तो हम ये कह सकते हैं पाइथन इज नॉट ए टाइप सेफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। टाइप सेफ्टी का मतलब होता है कि अगर कोई ऑपरेशन करेंगे तो वो ऑपरेशन रन टाइम पर फेल नहीं होगा, ठीक है। पहले ही आपको मना कर देंगे, या तो पहले ही मना कर देंगे, और अगर पहले मना नहीं कर रहे हैं मतलब वो होगा रन टाइम पर, ठीक है। सो दिस इज नॉट ट्रू इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एज ए प्रोग्रामर आपको हैंडल करनी सिचुएशंस। आगे बढ़ो। पाइथन के अंदर लिस्ट में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट होता है हमारा जिसका नाम है लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। तो जो लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन है ये लिस्ट क्रिएट करने का एक कंसाइज वे है। कंसाइज का मतलब है शॉर्ट वे, क्विक वे। तो कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कि एक एक्सप्रेशन का यूज करके एक शॉर्ट वे बना दिया गया है जिससे आप लिस्ट को बना सकते हैं। पहले मैं इसको एग्जाम्पल से समझाऊंगा, फिर मैं इसकी एक लाइन की डेफिनेशन वो लिख दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं इसका सिंटैक्स लिख देता हूँ क्योंकि कोड हम तभी लिख पाएंगे। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन से जो लिस्ट बनेगी उसका सिंटैक्स इस तरह से होगा। आप बोलेंगे इसमें कौन सा नया सिंटैक्स है, ये तो पुरानी सिंटैक्स है, एम्प्टी लिस्ट बन गई। हमने कहा इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा जाएगा। आप एक एक्सप्रेशन लिखते हैं, स्पेस आप एक फॉर लूप लगाते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंटैक्स होता है। जब आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक एक्सप्रेशन लेते हैं उसके बाद एक फॉर लूप लिखते हैं, तो इस तरह का जो सिंटैक्स है वो लिस्ट कॉम्प्लीमेंट सिंटैक्स कहलाता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है जो आप यहाँ लिख रहे हैं, this expression can be a value, it can be a variable,
It can be arithmetic expression. It can be a function call. ठीक है, तो ये जो हमारा है ये इनमें से कुछ भी हो सकता है, एक वैल्यू भी हो सकती है, एक वेरिएबल भी हो सकता है एक्सप्रेशन, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन भी हो सकता है और एक फंक्शन कॉल भी हो सकता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कोड से। तो यहाँ पर लिखा मैंने, मान लीजिए L इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट, और अभी एक्सप्रेशन के नाम पर मैंने लिख दिया I मल्टीप्लाई बाई आई। डेफिनेटली एरर है, क्योंकि I नाम से वेरिएबल तो मैंने कहीं बनाया ही नहीं है पूरे प्रोग्राम में, तो इंटरप्रेटर तो मना कर देगा, I तो है ही नहीं हमारे पास। क्या करेंगे, स्पेस देकर यहाँ पर हम फॉर लूप लगाएंगे और फॉर लूप के वेरिएबल का नाम हम I रखेंगे। ठीक है, और वही I को हम यहाँ पर एक्सप्रेशन में यूज करने की बात कर रहे हैं, तो लिखेंगे फॉर I इन रेंज 5। मान लीजिए मैंने ये लिख दिया। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अभी तक जो भी हम फॉर लूप यूज करते थे उसका इंडेंटेड ब्लॉक बनाया करते थे, बट अभी मुझे इंडेंटेड ब्लॉक ऐसे नहीं बनाना है ना, एज इट इज लिखना है, बिना इंडेंटेड ब्लॉक के फॉर लूप को लिखना है। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा इसको समझते हैं। हमारा सबसे पहले ये जो फॉर लूप है इसका फर्स्ट इटरेशन होगा। जब इसका फर्स्ट इटरेशन होगा तो I की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद एक्सप्रेशन एग्जीक्यूट होगा। ये जो एक्सप्रेशन है फिर ये एग्जीक्यूट होगा, यानी कि 0 मल्टीप्लाई बाई 0। अब जो रिजल्ट बना वो रिजल्ट हमारा इस लिस्ट में अपेंड होगा। आपको अपेंड मेथड कॉल करने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली जो ये सिंटैक्स है इसमें अपेंड मेथड इंटरनली चल जाता है, और वो अपेंड क्या करेगा, इस एक्सप्रेशन से जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट को अपेंड करेगा लिस्ट के अंदर। ठीक है, तो अब यानी कि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होगा वो कौन आ गया, 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट इटरेशन होगा, यानी कि I की वैल्यू 1 होगी, फिर एक्सप्रेशन चलेगा। इट मींस फॉर ईच इटरेशन expression will be executed and result of this expression will be appended to this list. Fine, हर इटरेशन के लिए एक्सप्रेशन चलेगा और एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट होगा वो लिस्ट में अपेंड होगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट इटरेशन होगा I इक्वल टू 1, तो यहाँ पर अब 1 इंटू 1 हो जाएगा, और लिस्ट के अंदर अब 0 पहले आ चुका था इससे पहले वाली इटरेशन में, अब कौन आ गया, 1 और आ गया। ठीक है, अब I की वैल्यू हमारी 2 हो गई। हो जाएगा, 0 पहले था, 1 भी था और अब 4 भी आ गया। तो इस तरह से कब तक चलेगा, I की वैल्यू आखिरी क्या आएगी यहाँ पर इस रेंज फंक्शन के अकॉर्डिंग, लास्ट वैल्यू I की आएगी 4। ठीक है, तो 4 तक हमारा ऐसे चलेगा। उसके बाद अगर आप प्रिंट करना चाहते हैं L को, जीरो 1 4 9। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या लिख पा रहे हैं, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन को लिख पा रहे हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे कहूं कि बिना लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के क्या हम यही कोड कर सकते हैं, आंसर इज यस। कैसे करेंगे वो देखते हैं। सो फर्स्ट you will create empty list, then you will write for loop for I in, then in the body of this for loop what you will write, you will write this expression, that is I into I. Store the result of this expression, let us suppose into a variable j, and then append this j to this L, that is L dot append
Now after completing this loop, print the value of this. Both are same. अब आप देख लीजिए, यहां पर आप 2 लाइन में इस काम को कर रहे थे, वही काम यहां पर 1 2 3 4 5 लाइन में हुआ है। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है कंसाइज या शॉर्ट या क्विक वे टू क्रिएट ए लिस्ट। तो कॉम्प्रीहेंशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल नहीं करता। कॉम्प्रीहेंशन हमारी लिस्ट को क्रिएट करने में अगर आप एक लूप का यूज करते हैं और अपेंड मेथड का यूज करते हैं तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में कोड को रिड्यूस कर देता है। अब आप बोले नहीं, मैं तो लिस्ट को लूप से नहीं बना रहा था, मैं तो अपेंड मेथड नहीं चाहता था, तो कॉम्प्रीहेंशन आपके लिए नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन पर्टिकुलर सिचुएशन को कंप्रेस करके बना दिया गया है और वो है ये जो आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है, अब यहां पर जो मैंने एक्सप्रेशन यूज किया है, दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट, दिस एक्सप्रेशन इज i इंटू आई। अब क्या मैं कोई और एक्सप्रेशन यूज कर सकता हूं? आंसर इज यस। क्या मैं करने जा रहा हूं वो देखते हैं। अब मैं नीचे वाला कोड जो एक्सप्लोर करके लिखा था वो मैं नहीं लिखूंगा, सीधे लिखेंगे। 1 मिनट रुकेंगे बस। सो यहां पर अब मैं इस एक्सप्रेशन की जगह सिर्फ एक वेरिएबल लिखता हूं तब भी ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ये जो वेरिएबल है यहाँ पर कुछ एग्जीक्यूशन तो होगा नहीं, सीधे सीधे जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगी। इसका मतलब आई की वैल्यू फर्स्ट इटरेशन में 0 है, 0 ही यहाँ पर कंसीडर करी जाएगी और वही 0 एज इट इज जाके लिस्ट में अपेंड हो जाएगी एंड सो ऑन सो ऑन। तो ये जो लिस्ट बनेगी इस लिस्ट में एलिमेंट आएंगे 0 1 2 3 4। ठीक, अब अगर मैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में लिखता हूं, सपोज करिए यहां पर जस्ट मैंने लिख दिया 2, तो इसका मतलब क्या है? बताइए कीर्तित। लिस्ट जो बनेगी यहां पर उस लिस्ट में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे? So only 2. ओनली 2 कितनी बार होगा? एक बार 2 होगा, 5 times. 5 टाइम्स 2 होगा। ठीक है, इसका मतलब है लूप चल रहा है, आई की वैल्यू पहले 0 आई, लेकिन आप उस आई का इस्तेमाल यहाँ नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप नहीं कर रहे हैं तो देखो ये आपका एक लॉजिक हो सकता है, ऐसा नहीं है कि करना ही होगा। लेकिन लिस्ट में क्या अपेंड होता है? लिस्ट में अपेंड वही होता है जो यहाँ से आउटपुट बनता है। लिस्ट में अपेंड वो नहीं होता जो यहाँ पर था। जो यहाँ पर वैल्यू थी वो यहाँ यूज करी जा सकती है और यहाँ से जो आउटपुट होगा वो कहाँ जाएगा? हमारा लिस्ट में जाके अपेंड होगा। तो यहाँ से तो हर बार 2 ही जाके अपेंड हो जाएगा, एक स्टैटिक वैल्यू है ये तो। फाइन। अब सपोज करिए यहां पर
बताइए इस बार जो लिस्ट बनेगी इस लिस्ट में क्या एलिमेंट्स हमारे लिए नहीं आएंगे? Six time loop run होगा because of Python. Good, fine. And what will be the elements in this list? An element तो 0 to 5 ये 0 to 6 अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये तो आपने सही बताया कि लूप 6 टाइम चलेगा, फाइन। अब हमें ये पता करना है कि हर बार जब चलेगा तो आई में, इस वाले आई में क्या वैल्यू आएगी। ये जो हमारा स्प्रिंग के एलिमेंट है यही आएंगे, पहले पी आएगा इसमें, है ना, और फिर अगली बार में वाई आएगा, ऐसे। तो जब इसमें पी आएगा पहली बार तो यही पी कहाँ मिलेगा, इस आई में मिलेगा, और यहाँ पर मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ तो यही पी सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, एल के अंदर एलिमेंट बनकर चला जाएगा। लिस्ट में क्या आ जाएगा हमारा, पी। अगली इटरेशन में वाई यहाँ पर आएगा और यही वाई यहाँ पर यूज होगा और यही वाई कहाँ पे एंड हो जाएगा, यहाँ पे। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट बन रही है उस लिस्ट के अंदर ये जो एलिमेंट है वो पी वाई टी एच ओ एन एज ए स्प्रिंग बनकर आ रही है। अब सपोज करिए अगर आपसे कहा जाता है कि यहां पर मैं सकता हूं, एक वेरिएबल लिख सकता हूं, एक वैल्यू लिख सकता हूं, एक फंक्शन कॉल भी कर सकता हूं। ध्यान से देखना है, इनपुट अगर मैं लिखूं यहां पर एंटर वैल्यू, और यहाँ पर मान लीजिए आप पाइथन लिखना चाहे पाइथन लिख दें, रेंज लिखना चाहे रेंज लिख दें, कुछ भी लिखें, मान लो मैंने रेंज पाइथन, एंटर वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सप्रेशन उतनी बार चलेगा जितनी बार ये लूप इटरेट करेगा। लूप हमारा 5 टाइम्स इटरेट करेगा, 0 to 4। जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार यूजर से इनपुट लिया जाएगा। अब वो जो इनपुट यूजर से आ रहा है कहाँ जाएगा, वो कौन कंज्यूम करेगा उसके लिए, वो हमारा कहाँ जाके अपेंड हो जाएगा, लिस्ट में। क्योंकि हमने जो सीखा है वो यही है कि यहाँ पर जो एक्सप्रेशन लिखा होता है उसका जो आउटपुट बनेगा वो सीधे लिस्ट में जाके अपेंड हो जाएगा। तो इसका मतलब है यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है वो यूजर से इनपुट लेने का फंक्शन है, हो सकता है, क्योंकि एक्सप्रेशन एक फंक्शन कॉल भी होती है, और यूजर से जो भी इनपुट आएगा वो जाके लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। मैं लिखा एंटर वैल्यू विराट, एंटर वैल्यू रोहित, अजय, विजय और करण, नहीं, तो ये आ गया विराट, रोहित, अजय, विजय। अब आप चाहते नहीं मैं यूजर से इंटीजर इनपुट लेके लिस्ट में इनपुट कराऊंगा, तो आप जो यूजर से इनपुट आ रहा है उसको इंट में कन्वर्ट कर दीजिए। तो ये सब इसी एक्सप्रेशन के अंदर हो रहा है। तो अब इस पूरे एक्सप्रेशन का रिजल्ट क्या बनेगा, यूजर से इनपुट लेना, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना, और फिर वो इंटीजर कहाँ जाकर अपेंड हो जाएगा, लिस्ट में अपेंड हो जाएगा। ये काम कितनी बार होगा, जितनी बार लूप चलेगा। ठीक, चलिए। अब अगर आपसे कहा जाए कि वही प्रोग्राम जो यूजर से आप मार्क्स लेंगे और 5 सब्जेक्ट टॉप 2 मार्क्स को आप प्रिंट कराने की कोशिश करेंगे, वो लिखें, तो 2 लाइन में ये प्रोग्राम आसानी से लिखा जा सकता है। देखिए एंटर
मार्क्स आ गए लिस्ट में। अब लिस्ट को मैंने क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया और स्लाइस करके टॉप 2 मार्क्स जो भी होंगे हमारे आ जाएंगे। तीन लाइन में ये काम हमने कर लिया। C++ में इस काम को करने के लिए कम से कम 25 लाइंस लिखनी पड़ेंगी। कम कम में नहीं होगा, कितना भी लॉजिक लगा लेना। C++ जावा में इस काम को करने के लिए कम से कम 8 लाइन लिखनी पड़ेगी। कम से कम 8 लाइन, उससे कम में कुछ भी कर लो नहीं होगा। पाइथन में 3 लाइन से इस काम को किया जा सकता है। कॉम्प्रिहेंशन आ जाने से थोड़ी और चीज़ें पावरफुल हो गई, कोड और हमारा रिड्यूस हो गया। बट कॉम्प्रिहेंशन डिलीट करने के लिए नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन एलिमेंट को गेट करने के लिए नहीं है, कॉम्प्रिहेंशन लिस्ट को क्रिएट करने के लिए है। ठीक है, सिर्फ क्रिएट करने के लिए। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। using सिंटैक्स क्या है, सिंटैक्स। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर लूप के बाद कोई हमसे पूछे क्या कुछ और भी लिखा जा सकता है। यहाँ पर इस फॉर लूप के बाद क्या हम कुछ और लिख सकते हैं। यहाँ तो हो गया एक्सप्रेशन, यहाँ हो गया फॉर लूप। तो आप चाहें तो इसको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं, एक और फॉर लूप लगा सकते हैं, या वो लिख सकते हैं जो इस फॉर लूप में नेस्टेड हो सकता है। तो अगर मैं लिखूं यहाँ पर फॉर आई इन रेंज, मान लीजिए 3 स्पेस फॉर जे इन रेंज 3, तो ये फॉर लूप, फिर ये फॉर लूप, एक्सप्रेशन कहाँ लिखेंगे, वो सबसे पहले लिखेंगे। इस बार लिख दिया मैंने आई प्लस। अब इसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा, तो एग्जीक्यूशन होगा, समझेंगे, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड 3 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पर जे हमारा लूप 3 बार चलेगा। दोबारा समझेंगे, आई की वैल्यू जब 0 होगी तो जे का लूप 3 बार चलेगा। आई की वैल्यू जब 1 होगी जे का लूप फिर से 3 बार चलेगा। आई की वैल्यू जब 2 होगी जे का लूप फिर से 3 बार चलेगा। फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई दिस फॉर लूप विल बी एग्जीक्यूटेड कंप्लीट। अब इस एक्सप्रेशन का एग्जीक्यूशन कब होगा, फॉर ईच वैल्यू ऑफ जे दिस एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। आई की हर वैल्यू के लिए ये लूप 3 बार चलेगा, और ये लूप जितनी बार चल रहा है हर बार ये एक्सप्रेशन चलेगा। ठीक है, इसका इक्विवेलेंट कोड मैं आपको लिख के दिखाऊंगा। एक एम्प्टी लिस्ट होगी पहले, फिर एक लूप आएगा फॉर आई इन रेंज, और ये जो लूप है जे वाला, ये इसका नेस्टेड लूप माना जाएगा। फॉर जे इन रेंज अगेन, तो इसका मतलब क्या है, फॉर ईच वैल्यू ऑफ आई दिस लूप विल बी एग्जीक्यूटेड। फिर मैंने बोला फॉर ईच वैल्यू ऑफ जे एक्सप्रेशन विल बी एग्जीक्यूटेड। इसका मतलब ये नेस्टेड बनेगा इस वाले, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस। अब आप इसको एक वेरिएबल में रख लीजिए क्योंकि आप एक्सप्लोर करके लिख रहे हैं, और फिर एल डॉट अपेंड क्या होगा, प्रिंट ऑफ। चाहे तो आप ऐसे लिस्ट क्रिएट करें और चाहे तो इतना कोड लिख के क्रिएट करें, दोनों का मतलब एक।
तो मेरी तरफ से रिकमेंडेशन सजेशन ये है कि आपको चीजें कंट्रोल करनी आनी चाहिए। अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो कंट्रोलिंग आएगी, तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे जाएं। अगर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, भले ही 4 लाइन ज्यादा लिखें, लेकिन काम तो हो रहा है ना हमारा, तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे ना जाएं और आप एक्सप्लोर करके कोड लिखें। ठीक है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन ने कभी ये नहीं कहा कि असंभव को संभव कर दिया मैंने, नहीं, इसने सिर्फ ये कहा कि ज्यादा लाइन में लिखे कोड को कम लाइन में ला दिया, काम वही हो रहा है। ठीक है, तो आपको इससे समझना होता है, समझना आसान है। सिंगल फॉर लूप है, तो पहले लूप का इटरेशन होगा, एक्सप्रेशन चलेगा। लूप के बाद एक और लूप है, तो फॉर ईच iteration of this loop will be executed, and for each iteration of this loop expression will be executed। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। अब आप बोले इसके आगे और क्या हो सकता है, हमने कहा इसके आगे एक लूप और लगा दो, इसके आगे आप इफ लगा सकते हो। ठीक है, हर वो चीज जो आप इसके आगे लिखेंगे वो यहाँ पर नेस्टिंग होती चली जाएगी। तो अब आप सोचो, एक फॉर के अंदर क्या चीज नेस्ट करी जा सकती है, जो नेस्ट करी जा सकती है वो यहाँ पर लिखी जा सकती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। कैसे लिस्ट हमारा काम करती है, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। अब लिस्ट से रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। जैसे राइट ए पाइथन प्रोग्राम टू सम ऑल आइटम्स इन ए लिस्ट, मतलब एक लिस्ट बनानी है, उस लिस्ट के अंदर कुछ एलिमेंट्स रखने हैं, कितने रखने हैं उसकी बात नहीं हुई, आप 5 रख लो, 10 रख लो, 50 रख लो, 3 रख लो। आपका कोड होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट्स या आइटम या वैल्यूज, एक ही बात है, जितने भी आइटम्स लिस्ट में रखे हैं उन सबका सम हो जाए। तो इसका मतलब यह है कि लिस्ट के अंदर जो आइटम होने चाहिए न्यूमेरिक होने चाहिए, तभी सबका सम हो पाएगा। इसी तरह से एक प्रोग्राम बनाना है, ये तो शायद मैंने कर दिया, बस ये है हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट और मुझे इसका कोड बनाना है, पढ़कर कोड बनाना है। मैंने आपको बोलकर बता दिया कि ये प्रोग्राम इस समस्या का समाधान है। अब यही चीज लिखी हुई है, राइट ए प्रोग्राम टू गेट द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ए लिस्ट। तो अभी काफी लोगों के ब्रेन में इसका आउटपुट आ भी गया होगा कि कैसे ये होगा। इस तरह से सारे क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं और हर किसी का आउटपुट आपने बनाना है। ठीक है, 90% चांस है कि जितना मैंने अभी आपको पढ़ाया है उससे ये पूरा सॉल्व हो जाएगा, और 10% चांस इस बात के पूरे पूरे हैं कि कहीं ना कहीं एक ऐसा क्वेश्चन जरूर होगा, एक या दो क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो आउट ऑफ सिलेबस होंगे, मतलब जो मैंने पढ़ाया ही नहीं है वो भी यहाँ पर यूज होगा। तो ऐसी हैबिट डालिए कि आप जिस टॉपिक को पढ़ रहे हैं उस टॉपिक से रिलेटेड जब मैं आपको असाइनमेंट्स करने को दूंगा तो हर असाइनमेंट में एक या दो क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस जरूर होगा। क्यों? क्योंकि आपको गूगल करना भी सीखना है। हर चीज आप खुद पढ़ पाएंगे प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? बनाने वाला एक नहीं तो पढ़ने वाला एक। क्या आपको लगता है जिसने ये पूरी पाइथन बनाई उसने 4 महीने और 6 महीने में बना दी होगी? क्या वो बनाने वाला एक इंसान रहा होगा? पिछले 30 साल से पाइथन बन रही है, पूरी टीम लगी हुई है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं एक इंसान 3 महीने में पूरी पाइथन पढ़ रही है? इसका मतलब क्या है, जो हमारा फंडामेंटल है, जो बेसिक हमें आना चाहिए वो हमें सीखना है, और जो हमने सीखना है वो इस तरह से सीखना है कि कल को कुछ नया मिल जाए तो उसको हम समझ पाए, गूगल पे देखकर या कहीं से रेफरेंस लेकर पढ़ पाए। तो हर असाइनमेंट में एक दो क्वेश्चन ऐसा जरूर मिलेगा जो आपका मैंने कवर नहीं किया उसका टॉपिक, और आपको गूगल पे सर्च करना है, समझना है क्या वो होता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको ये अप्रोच भी आनी चाहिए। ठीक है, चलिए कल मिलेंगे, कल नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। तो ऐसा नहीं कह रहा मैं कि आज ही बनाकर आप मुझे इनको मेल करेंगे, आप टाइम लीजिए, आज बनाइए, कल बनाइए, 1-2 दिन में आप इसको बनाकर मेरी मेल आईडी पर मेल कर दीजिए।